خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام سامنے بیٹھے ہوئے، سرزمین گمانی اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ہر دل بھائی بزرگوں اور اس جلسے میں شریک ہوئی ہماری ماں و بہنوں، آج میں قبر سے لے کر انسان کا جنت اور جہنم میں داخل ہو جانا یہاں تک گفتگو رکھوں گا۔ امید ہے آپ بغور سنیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا اور آپ کا کنفیوژن اسی میں ہے کہ لوگ مرتا ہے اس پر یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا واقعی جنت ہے کیا جہنم ہے، اس پر ہمیں کنفیوژن ہے، اس پر ہمیں شک ہے۔ اسی شک کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ یہ سوال ہمارے اور آپ کے دل میں صرف نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام پر لوگ اعتراض کرتے تھے، ان کے ماننے والے لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ ہم یہی سنتے آ رہے کہ قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، لیکن ہو کہاں رہی ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لا کر دکھاؤ قیامت کو۔ ان شک و الجھن کو انشاءاللہ آج کی تقریر میں دور کروں گا۔ اور یہ مذاق جس طرح ہم اور آپ بناتے ہیں اور ہمارا بھی بناتا ہے مشرکین، کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا دعویٰ ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد جنت چلے جائیں گے، لیکن کافر جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح مذاق میرے بھائیوں نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے اوپر بھی اڑایا تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کیا، دعوت دینا شروع کیا، قوم نے نہیں مانا، انکار کر دیا، تو پھر یہ قوم عذاب کے مستحق ٹھہری، اور اس قوم میں ایک بڑا سا عذاب آیا تھا۔ اسرائیلی روایت اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری پیدا کر دی، ایک وبا پھیل گیا اس زمانے میں، جس طرح کورونا وائرس کی شکل میں بیماری آئی تھی اسی طرح۔ اور وہ بیماری یہ تھی
اس کا نام تھا کھجلی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کھجلا رہے تھے، جہاں دیکھو ادھر کھجلا رہا ہے ادھر کھجلا رہا ہے، سب پریشان ہے، کھجلاتے کھجلاتے، نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی علاج ہے، سب پریشان ہے، کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ بیماری نوح علیہ السلام کی قوم کو دے دی۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب تم کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے۔ جب کشتی بنائے تو ان کی قوم نے اور مذاق بنایا۔ چیت بیساکھ کا مہینہ ہے، مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے، اور اے نوح تم کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ دور دراز تک پانی نہیں ہے، یہ جس طرح گنگا یہاں بہ رہے ہیں یہاں کچھ پانی نہیں ہے، اسی طرح میرے بھائیوں وہ موسم ایسا رہا ہوگا کہ اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور مذاق بنایا۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو ان کی قوموں نے حدیں پار کر دیے، لمٹ پار کر دیے، باؤنڈری کو کراس کر گئے، اور اس کشتی پر ہی پاخانہ کرنا شروع کر دیا، اس کشتی پر ہی لیٹرن کرنا شروع کر دیا، پاخانہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے شکوہ کرنا پڑا کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ تیرے بندہ ہے جنہوں نے اس کشتی پر ہی پاخانہ کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا قرآن میں کہ مکروا مکرا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کافر اگر چال چلے لیکن تم ان کے چال سے گھبرانا نہیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العالمین بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس قوم کے اندر ایک بیماری پیدا کر دی، اس بیماری کا نام ہے کھجلی۔ سب کھجلانے میں پریشان ہے، کھجلا رہا ہے، جدھر دیکھو کھجلا رہا ہے۔ جب بیماری کا کوئی دوا نہیں ملی، جب بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ہے، اتنے میں اللہ کو کرنا یہ تھا کہ ایک شخص اس کشتی کے پاس چلا گیا لیٹرن کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ کشتی پہلے ہی سے فل ہے تو کشتی کے کنارے ہی میں بیٹھ گئے، پاخانہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اچانک اس آدمی کا بیلنس گڑبڑایا اور اس پاخانہ میں ہی گر گیا، اس پاخانہ میں ہی وہ آدمی گر گیا، اور جہاں گرا، جہاں جہاں پاخانہ لگا اس کی بیماری ختم۔ اس نے پورے محلے والوں کو آواز دی کہ دوڑ آؤ، کھجلی کی دوا مل گئی ہے۔ سب پریشان ہیں کہ کھجلی کی دوا مل گئی، آ کے لوگ لگانے لگے، سب کی بیماری ٹھیک ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری کشتی پاخانہ صاف ہو گیا۔ میرے بھائی تو بہترین چال چلنے والے اللہ رب العالمین۔ تو اسی طرح مذاق لوگ اڑایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی قیامت ہوگی تو کب ہوگی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی جملے کا نقشہ کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یسألوا ایان یوم القیامہ، کیا اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آپ انہیں کہہ دیجئے قیامت کا سٹیک علم کسی کو نہیں ہے، ہاں اس کی کچھ سنکیت ہے، کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ہیں، جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے تو تم سمجھ لینا کہ قیامت واقع ہو جائیں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ان کی نشانی یہ ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سنکیت ہے، یہ علامت ہے کہ چاند بے نور ہو جائیں گے اور چاند اور سورج کو جمع کر دیے جائیں گے، انسان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کلیئر نہیں کہہ رہا ہے کہ کس سال میں قیامت آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی حدیث میں بھی اس کا کلیئر واضح نہیں کیا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کی علامت یہ آپ نے بتا دی۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، کہیں پر فرماتا ہے کہ اخبرنی عن، کہیں پر فرماتا ہے اخبرنی عن الایمان۔ انہیں سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اخبرنی عن الساعہ، کیا ہے فلا میں جاننا چاہتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ اے محمد آپ کہیے قیامت کب آئے گی؟ آپ جواب دیتے ہیں مل مسئول عنہا بیعلم من السائل، اے اجنبی آدمی میں تجھے جانتا نہیں کہ تم کون ہو، لیکن قیامت کے بارے میں تم مجھے پوچھ رہے ہو تو اتنا سن لو، جتنا تم اس کے بارے میں جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ ہاں آپ نے کچھ نشانیاں، کچھ ظاہر آپ نے بتا دی کہ کچھ نشانیاں آئیں گے تو سمجھو قیامت ہوگی، آپ نے یہاں پر بھی نہیں کہا کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح حذیفہ ابن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں
हम लोग आपस में सहाबा किराम बैठकर डिस्कशन कर रहे थे, बहस कर रहे थे, बहस व मुबाहिसा में लगे थे, क़यामत का तज़किरा कर रहे थे कि क़यामत कब आएगी। इतने में अल्लाह के नबी आ गए। आपने पूछा, क्या है मेरे सहाबा, तुम लोग मा तज़ाकरून, किस बारे में चर्चा कर रहे हो, किस विषय पर गुफ्तगू कर रहे हो, तुम लोग किस मामले में बातचीत कर रहे हो। यहाँ अगर इतने आदमी बैठे हैं, कोई अजनबी आदमी जिनको जलसे वगैरह के बारे में पता नहीं, वो आके पूछेंगे यहाँ क्या हो रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मजलिस तुम्हारी कैसी है, तुम इस मजलिस में क्या बात कर रहे हो। सहाबा ने फरमाया, नहनु नज़कुरुस्साआ, ऐ अल्लाह के नबी, हम इस मजलिस में बैठकर क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, इन्नहा लन तक़ूम अस्साआ, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता तरौना क़ब्लहा अशरा आया, यहाँ तक कि तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियां ना देख लो। क़यामत नहीं आएगी, यहाँ तक कि तुम बड़ी बड़ी 10 निशानियां ना देख लो, क़यामत नहीं आएगी। 10 निशानियों को बयान करने से पहले छोटी छोटी निशानियों को पहले बयान करता हूँ, उनके बाद इन 10 निशानियों को बयान करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अलामत सुगरा, अलामत कुबरा, कुछ छोटी निशानियां आएंगी और कुछ बड़ी निशानियां आएंगी। छोटी निशानियां, अल्लाह के नबी जब इस दुनिया में आ गए, आप पैदा हो गए, तो वहां से शुरुआत, वहां से इनकी शुरुआत हो जाती है, वहां से क़यामत की अलामत शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी खुद फरमाते, बुइस्तु अना वस्साअत कहातैन, ऐ मेरे सहाबा, मैं दुनिया में आ गया, मुझे भेज दिया गया, मैं और क़यामत इस तरह मिला हुआ हूँ। बुइस्तु अना वस्साअत कहातैन, जिस तरह आपस में 2 उंगलियां अटैच है, आपस में 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, मैं और क़यामत वैसे ही मिला हुआ हूँ। मैं जब दुनिया में आ गया तो क़यामत ज्यादा दूर नहीं है, क़यामत जल्दी तुम्हारे सामने वाक़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, फिर आपने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक के वयतक़ारब ज़मान, ज़माना बिल्कुल करीब हो जाएगा। साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीना हफ्तों की तरह गुजरेंगे, हफ्ता दिन की तरह गुजरेगा, दिन घंटे की तरह, घंटा मिनट की तरह, मिनट सेकंड की तरह गुजरेंगे, तुम्हें उसका एहसास तक नहीं होगा। ज़माना करीब हो जाएगा। आपने उन्हीं फितनों में, आपने एक फितना ये भी बताया, उन्हीं निशानियों में एक निशानी ये भी बयान की, वह तज़हरल फितन, जमीन में फितना फैल जाएगा, इतना फितना हो जाएगा, इतना फितना फैल जाएगा। आपने फरमाया, एक मर्तबा आप मदीने के किसी टीले पे चढ़ गए, किसी पहाड़ पर चढ़ गए, किसी ऊंची जगह पे चढ़ गए और सहाबा किराम से मुखातब हुए और कह रहे हैं, मा तदरूना मा हाजा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम उस चीज को जानते हो जिसको मैं जानता हूँ। सहाबा किराम फरमाते हैं, ला नहीं, ऐ अल्लाह के नबी, आप जो चीजें जानते हम नहीं जानते हैं, ज्यादा तो अल्लाह और उसके रसूल ही जानता है, हम नहीं जानते। तो आपने फरमाया, है मेरे साहबा, अन करीब मैं फितना देख रहा हूँ। वो फितना किस तरह है? वो फितना बारिश के कतरों की तरह है, वो फितना बारिश की बूंदों की तरह है। बारिश की बूंदों से जिस तरह इंसान का बचना मुश्किल है, बारिश के कतरों से जिस तरह इंसान का बचना मुश्किल है, वो फितना बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में नाजिल हो रहे हैं। बारिश के कतरों की तरह वो फितना तुम्हारे घरों में नाजिल हो रहे हैं, बारिश की बूंदों की तरह वो फितना तुम्हारे घरों में नाजिल हो रहे हैं। तो हमें और आपको क्या करना है? उस फितने से बचना है। और कैसे बचना है? आपने मुस्लिम की हदीस में क्लियर फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन तक़िता इल्लैल मुस्लिम। आए मेरे सहाबा, तुम लोग नेकियों की तरफ जल्दी करो, अपना कदम आगे बढ़ाओ, उस फितने की आने से पहले पहले। जो फितना तारीकी रात में बिल्कुल अंधेरे ही अंधेरे की तरह छा जाएंगे, जिस तरह अंधेरी रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमें आसमान नजर नहीं आता है, हमें सितारा नजर नहीं आता है, हमें दुनिया के कारोबार नजर नहीं आते हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे प्यारे साथियों, जब वो फितना आ जाएगा तो हमें नमाज का तरीका पता नहीं चलेगा, हमें रोजे का तरीका पता नहीं चलेगा। जब वो फितना आ जाएगा तो हमें सही रास्ता पता नहीं चलेगा, हमें गुमराह रास्ता पता नहीं चलेगा, हमें अच्छे और बुरे राह में तमीज नहीं कर सकेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वो ऐसा इसलिए होगा, उस दौर में लोगों की हालत कैसी होंगे, लोगों के ईमान का क्या हाल होगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा।
उस वक्त हालत ये होंगे, आदमी सुबह मोमिन होगा तो शाम को काफिर, वयुंसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरन, या शाम को मोमिन होगा तो सुबह होते होते काफिर। ऐसा इसलिए होगा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, इसलिए कि लोग दुनिया के चंद दिरहम और दीनार के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे, चंद दिरहम और दीनार के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। आप और कीजिए, खुसूसन हमारे बिहार और झारखंड पे नजर डालें। मेरे भाइयों, किसी ने लिखा है कि ये कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को तलाक देते हैं, कभी आरजेडी को तलाक देते हैं, कभी इनको तलाक, कभी इनको तलाक। तो मेरे प्यारे साथियों, आखिर इनकी सियासत क्या है? इनसे अगर कोई सवाल करे कि आपकी सियासत क्या है, वो खुद इससे जवाब देने से कासिर है। मेरे भाइयों, नहीं दे सकता है जवाब। जिनकी वीडियो वायरल है कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। और जिनके साथ गया भी, उन्होंने भी कहा था सरेआम कि उनके लिए हमेशा के लिए हमेशा दरवाजा बंद हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, हालत ऐसे हो जाएंगे यबीउदीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, कि लोग दुनिया के खातिर, चंद दिरहम और दीनार के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। तो वह तज़हरल फितन, क़यामत की छोटी निशानी में एक निशानी ये है कि फितना बरपा होगा। इसी फितने की तरफ आपने इशारा किया और अल्लाह ताला फरमाता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐ लोगों तुम उस फितने से बचो जो फितना सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं आएगा, जो फितना खास खास लोगों के घरों में नहीं आएगा, आएगा तो सबके घरों में आएगा, पूरे बिहार में आएगा, पूरे झारखंड में आएगा, पूरे हिंदुस्तान में आएगा। इसलिए उस फितने से बचो जो खास खास लोगों में नहीं आएगा, खास खास इलाके में नहीं आएगा, आएगा तो सबके घरों में आएगा और सबको ले डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए पहले हम अपने आपकी कीमत समझें। आपने उसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जमीन में ज्यादा जलजला होगा। आप देख लीजिए, नेपाल का हाल देख लीजिए, नेपाल में कितनी मरतबा ज़लज़ले आते हैं और वहां पे कितने लोग मलबा के नीचे दफन हो गए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने सुना हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, पहले तो जानता नहीं कि वहां पर जानवरों को बेरहमी से ज़बह किया जाता है, उनकी गर्दन पर छुरी नहीं बल्कि उनके सरों पे मारा जाता है, पत्थरों से मारा जाता है, डंडे से मारा जाता है, मार कर उनको मार दिया जाता है, पत्थरों से मार मार कर पहले उनको मार दिया जाता है, फिर उनको ज़िबा किया जाता है। ऐसे लोगों के मुल्क में, ऐसे लोगों की जगह में अल्लाह का अज़ाब ना आए तो और क्या आए, ऐसी जगह में ज़लज़ले ना आए तो और क्या है। मेरे प्यारे साथियों, आपने इशारा किया कि जमीन में ज्यादा ज़लज़ले होंगे, जमीन में ज्यादा ज़लज़ले होंगे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक सहाबी हजरत अदी इब्ने हातिम मौजूद है, आप भी उसी मजलिस में शामिल है। एक आदमी दूर से आया और शिकायत की कि अल्लाह के नबी, फला मुल्क में बदअमनी फैली हुई है, लूट मार मचा रखा है, फसादियों की जगह बन चुकी है, कोई अगर बैग लेके रात में जाता है उसको लूट लिया जाता है। अल्लाह के नबी, और एक बस्ती ऐसी है, एक जगह ऐसी है जहां पे फख्र फाका है, जहां पर तंगदस्ती है, जहां की करेंसी मजबूत नहीं है, जहां के पैसे नहीं है, जहां पे लोग गरीबी हालत जिंदगी गुजार रहे हैं। दो शिकायत की तो आपने फरमाया है यदि कयामत आने से पहले पहले अगर तुम जिंदा रहो तो देखोगे कयामत की निशानियों में एक निशानी ये है कि हीरा से एक औरत तन्हा सफर करेगी, चल के सफर करेगी और खाने काबा आएंगी, मक्का आएंगी और खाने काबा का तवाफ करेंगे। एक औरत तन्हा चल के आएंगी और खाने काबा का तवाफ करेगी, लेकिन उसको अल्लाह के अलावा किसी और का डर नहीं होगा। आपने ये पेशिन गोई की कि एक औरत तन्हा चलेगी और खाने काबा आएगी, अल्लाह का खाने काबा का तवाफ करेगी, अल्लाह की इबादत करेगी, लेकिन अल्लाह के अलावा उन्हें किसी और का डर नहीं होगा। क्या मुल्क के गवर्नमेंट मौजूदा दौर में ये गारंटी ले सकते हैं कि देश की बेटियां महफूज है, या फिर वो तन्हाई के शिकार अगर रहे तो उनकी जान खतरे में नहीं है? कोई गारंटी ले सकते? नहीं ले सकते। मेरे भाइयों, हम यहाँ किसी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए नहीं कह रहे, पूरे मुल्क की बेटी की तरफ हम कह रहे हैं
जिस तरह मेरे भाइयों अफसोस की बात है कि बिल्किस बानो के साथ जो मामला हुआ, उनके रेपिस्टों को, बलात्कारों को फांसी की सजा सुनाई गई, जेल की सलाखों में रखा गया, लेकिन जब उनको फिर छोड़ दिया गया तो उनकी खुशी में मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई तकसीम किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मौजूदा दौर के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, और ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ कि देश की बेटियां महफूज है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम देखोगे यादी, अगर तुम कुछ दिन जिंदा रहो, एक औरत हीरा से चल के आएंगी और खाने काबा का तवाफ करेंगी। आदि कहते मैंने हैरान से पूछा, मैंने हैरत से पूछा, मैं हैरान हो गया कि कबीला तय के लोग कहाँ चले जाएंगे, कबीला तय के डाकू उस वक्त कहाँ चले जाएंगे, जो शहरों में लूटमार मचा रखा है, जो शहरों में फसाद मचा रखा है, वो लोग कहाँ चले जाएंगे। फिर आपने ये भी पेशिनगोई की, आयादी अगर तुम कुछ दिन और जिंदा रहो तो तुम देखोगे एक औरत अपने हाथ में कटोरा लेंगे, उनके हाथ में सोना होगा, उनके हाथ में चांदी होंगे, और वो गुमानी निकलेंगे, और वो बहरवा निकलेंगे, साहिबगंज निकलेंगे, किसी ऐसे आदमी की तलाश में निकलेंगे कि कोई उसकी ज़कात कबूल कर ले, कोई उसके सदके कबूल कर ले। लेकिन आए अदी, कोई उस दौर में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो उसकी ज़कात को कबूल कर ले, जो उसके चांदी को कबूल कर ले, जो उसके सोने को कबूल कर ले। आए अदी, तुम वो जमाना देखोगे कि सोने चांदी लेकर निकलेंगे, लेकिन कोई उसकी ज़कात कबूल करने वाला नहीं होगा। अच्छा, ये पेशिन गोई भी पूरी हो रही है, फकीरों की तादाद आए दिन घट रहे। मेरे भाइयों, गरीब अपने महलों में फख्र करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये पेशिन गोई भी पूरी हो रही है धीरे धीरे। हजरत यादी फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया कि एक औरत तन्हा सफर किया और खाने काबा का तवाफ किया, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और का डर नहीं हुआ। आए लोगों, तुम लोग कुछ दिन और जिंदा रहो, कयामत से पहले पहले तो वो दौर भी देख लोगे कि एक आदमी अपने हाथ में कटोरा लेगा, सोना चांदी होगा, लेकिन कोई उसके ज़कात को कबूल करने वाला नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, वो पेशिन गोई धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। आपने कयामत की छोटी निशानियों को बयान कर तो ये भी फरमाया कि ला तफना हादिहिल उम्मा, ये उम्मत उस वक्त तक हलाक नहीं होगी, ये उम्मत उस वक्त फना नहीं होगी जब तक तुम देख ना लो कि सड़कों पर ऐलानिया जिना हो रहा है, चौराहे पे जिना हो रहा है, चौराहे पे गलत काम हो रहा है, चौराहे पे बदकारी हो रही है। उस दौर का सबसे अच्छा आदमी वो होगा जो ये कहेगा चौराहे पे जिना करने वाले से, कहे फला आदमी तुम जाकर किसी पर्दे के पीछे जिना करो। मेरे भाइयों, जिना भी आम होने लगा है। ये छोटी निशानियां थी, अब मैं बड़ी निशानियों को मुख्तसर बयान करके ज़लज़ले के बारे में आऊंगा। मेरे भाइयों, उस जहन्नम के बारे में बताऊंगा कि जहन्नम के पास कितनी ताकत है, जहन्नम कितना पावर। 10 बड़ी बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी आपने फज़करा बयान किया कि अद्दुखान, एक धुआं जाहिर होगा, वद्दज्जाल, दज्जाल भी जाहिर होगा, दज्जाल आएंगे और दुनिया में फसाद मचाएंगे। मेरे भाइयों, दज्जाल कैसा आदमी होगा? एक आंख से काना होगा, बाल घुंघराले होंगे, कोई ये बता रहे कि उनका रंग सुर्ख होगा, कोई बता रहे सफेद होगा। दज्जाल आके लोगों को बहकाएंगे। एक हाथ में नकली जन्नत होगी, दूसरे हाथ में नकली जहन्नम होंगी। हकीकत में जिनके जो हाथ में जन्नत है वो जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है, और जिन हाथ में आग है जहन्नम है वो जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत है। दज्जाल आएंगे, हमें धोखा देंगे, और दज्जाल का माना ही होता है फ्रॉड करने वाला, दज्जाल का माना ही होता है धोखा देने वाला। अगर उसके धोखे में आ गए मेरे प्यारे साथियों तो हमारा ईमान खतरे में है, हमें जन्नत नहीं मिलेगी। और तमाम अंबिया किराम यही कहा करते थे, अपनी उम्मत को यही कहा करते थे, डराया करते थे, आए लोगों तुम दज्जाल के फितने से बच जाना। इसलिए अल्लाह के नबी भी दुआ ये सिखला गए हैं, मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, कि तुम दज्जाल के फितने से पनाह मांगते रहो। दज्जाल आएंगे, फितना मचाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ वो कत्ल होंगे। मेरे भाइयों, नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, एक बड़ी निशानी में एक निशानी ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। एक नबी जिंदा है, कयामत से पहले पहले आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की मस्जिद में आएंगे, टाइम फजर का वक्त होगा, लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرشتوں کے کاندھے سہارے دے کے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہوں گے لوگ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائے. لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے اے فلاں تم نبی کی امت ہو, تم محمد الرسول اللہ کی امت ہو, میں تمہارا امام نہیں بنوں گا, میں مقتدی ہوں گا, مقتدی کی صف میں شامل ہوں گا, میں تمہارا امام نہیں ہوں. تم لوگ آگے بڑھو, تم لوگ امام بنو, میں تمہاری اقتدا کروں گا, میں مقتدی بنوں گا. یہ ایک نبی آئیں گے اس دنیا میں میرے بھائیوں, لیکن ہمارا امام نہیں ہوگا. یہ اس امت کی فضیلت ہے, یہ ہماری اور آپ کی فضیلت ہے کہ ایک نبی آئیں گے, ایک رسول آئیں گے, وہ بھی ہمارا امام نہیں بنے گا. اس امت کے پیچھے وہ نماز پڑھے گا. بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَطُلُوعُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا, سورج پسچم سے طلوع ہوگا. جو سورج پورب سے طلوع ہوتا ہے وہ پسچم سے طلوع ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, قیامت آنے سے پہلے پہلے دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو سورج کو پورب کی بجائے پسچم سے طلوع کر دکھائے. لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے وَثَلَاثَةَ خُسُوف, 3 جگہ زمین دھسا دیے جائیں گے. وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ, مشرق کی جگہ میں, وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ, مغرب کی جگہ میں, وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ, اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ پہ زمین دھسا دیے جائیں گے. میرے بھائیوں, وآخر ذالک, آخری نشانی یہ ہے کہ نار تخرج, ایک آگ نکلے گی, تطرد الناس الی محشرہم, اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائیں گے. جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گے, اس بات کی اب دلیل ہے, اللہ اسرافیل کو حکم دے گا اسرافیل سور پھونکو. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا, سور میں پھونک مارے گا, قبروں سے لوگ دھڑ دھڑ نکلیں گے, قبروں سے لوگ نکل جائیں گے. زمین میں زلزلہ شروع ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائیں گی, ہلا دیے جائیں گے. وقال الانسان ما لها, انسان حیرت سے کہے گا, انسان حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے, اچانک یہ دھماکے کی آواز کیا ہے, یہ آواز کیسی, انسان کہے گا, اور زمین اپنے اندر بوجھوں کو نکال دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, جو زمین میں چھپے ہوئے خزانے, زمین تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے. کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین میں ہونے والے کرتوتوں کو زمین بیان کر دیں گے. بِأَنَّا رَبَّكَ وَحَالَهَا, اس لیے کہ یہ تیرے رب کا فرمان ہے, یہ تیرے رب کا حکم ہے. زمین میں کوئی اگر بدکاری کیے ہے, زمین میں کوئی کسی کو قتل کیا ہے, زمین میں کوئی کسی کو مارا ہے, زبردستی کسی نے زمین چھینی ہے, تمام چیزوں کو زمین بیان کر دیں گے. میرے بھائیوں, اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہیں پر کہ لوگوں الیوم نختم علی افواہہم, تمہاری زبان بند کر دیے جائیں گے, ہاتھ گواہی دیں گے, پیر گواہی دیں گے. تم نے کیا کیا ہے, ہاتھوں سے کیا کیا ہے, پیروں سے کیا کیا ہے, ان تمام چیزوں کو گواہی دیں گے. زمین بھی اپنے اندر ہونے والے تمام کرتوتوں کو بیان کریں گے. پھر میرے پیارے ساتھیوں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی نیک کیا کی, ان کو بھی ان کا رزلٹ دے دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی, اس کو بھی اس کا رزلٹ دے دیا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا, قیامت برپا ہوگی. اسی قیامت کا ایک نام القاریہ ہے, کھڑکھڑا دینے والے, انسان کو چوکنا کر دینے والے. جب کوئی آدمی گھر میں اور دروازہ لاک ہے, دروازہ بند ہے, اس کو آواز دینے کے لیے دروازے کو دستک دیے جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. اسی طرح قیامت کا ایک نام القاریہ ہے, کھڑکھڑا دینے والے. وما القاریہ, اور تجھے کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والے کیا ہے. وما ادراک ما القاریہ, کس نے بتایا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن انسان پراگندہ حال ہو جائیں گے, انسان بکھرے ہوئے ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, پہاڑ بھی
रुई की तरह, धुने हुए रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। ये पहाड़ कितना मजबूत है, ये पहाड़ कितना बड़ा पावरफुल है, ये पहाड़ कितना वजनदार है, पहाड़ को हिला नहीं पा रहे, पहाड़ भी रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। फिर मेरे प्यारे साथियों, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिनकी नेकियां ज्यादा होगी, जिनके पलड़े भारी होंगे, उनका ठिकाना आइश व इशरत वाली जिंदगी होगी। और जिनकी नेकियां कम होगी, वो अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, जिनकी नेकियां कम होगी, फउम्मुहु हाविया, उनका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, और तुझे किसने बताया हाविया क्या है? नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है। जब सूर फूका जाएगा तो ये हाल होंगे कि जमीन में जलजला बरपा होगा, लोग कब्रों से धर धर निकलेंगे। यौम यखरुजून मिनल अजदासिस सिरान कअन्नहुम इला नुस्बिन यूफिजून, लोग कब्रों से धर धर निकलेंगे, मैदान महशर की तरफ जाएंगे, तेज तेज चलेंगे, तेज तेज दौड़ेंगे, मैदान महशर में लोग हो जाएंगे। उस वक्त का हाल क्या होगा, आलम क्या होगा मेरे भाइयों? उस वक्त का हालत और उस वक्त का आलम ये होगा, हालत ये होगी, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, बाप अपने बेटे को छोड़ देगा, बेटा अपने बाप को छोड़ देगा, माँ अपने बेटी से भाग जाएंगी, शौहर बीवी जो हमेशा एक साथ रहे, पूरी जिंदगी एक दूसरे का रिश्ता निभाया, एक दूसरे को छोड़ देंगे, शौहर बीवी से जुदा, बीवी शौहर से जुदा, सब मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे। हजरत आयशा बयान करती है, उस वक्त का हाल मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप फरमा रहे थे, युशरुन्नास यौमल क़ियामा हुफातन उरातन गुरला, मैदान महशर में जब लोगों को जमा किया जाएगा, ऐ गुमानी वालों, आज मेरी तकरीर लचकदार ना हो, लेकिन आपको फिक्र आखिरत से जोड़ रहा हूं। उस वक्त का हाल ये होगा, लोग मैदान महशर की तरफ जब जाएंगे और उन्हें जमा किया जाएगा, हाल ये होंगे, बगैर खतना के उन्हें उठाए जाएंगे, बगैर कपड़े पहना हुए नंगे बदन उठाए जाएंगे, नंगे पैर उठाए जाएंगे। हज़रत आयशा कहती है, वर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, ऐ अल्लाह के नबी, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगे। इशारा इस बात पर था कि शर्मिंदगी का हाल होगा, शर्मिंदगी की कैफियत होगी, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, जब शर्मगाह खुली रहेगी, नंगे जिस्म रहेंगे, नंगे पैर रहेंगे, नंगे बदन रहेंगे, मर्द औरतों की तरफ देखेगा, औरत मर्द की तरफ देखेंगे। अल्लाह के नबी कहते, आयशा नहीं नहीं, उस वक्त की कैफियत इस तरह होगी कि कोई किसी की तरफ देख नहीं सकेगा। अल-अम्रु अशद्दु, उस वक्त का हाल ये होगा कि उस वक्त का मामला ही कुछ और सख्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। दुनिया में थोड़ी देर के लिए सैलाब आ जाए अचानक, आप किसी की फिक्र नहीं करेंगे, अपनी जान को हथेली में लेंगे और चल पड़ेंगे। जब ये दुनिया का हाल है, आंसू गैस छोड़े जाएं, कुमारी में छोड़े जाएं, बाप छोड़ दिए, बेटा छोड़ दिए, सब पाकुड़ की तरफ भाग रहे हैं, सब कहीं और भाग रहे हैं, कोई किसी को नहीं पूछेगा। मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त मैदान महशर का क्या हाल होगा? क्या कोई किसी से पूछेगा? नहीं पूछेगा। मेरे भाइयों, हाल ये होंगे कि कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। मेरे भाइयों, कुरान ने उस जलजले का नक्शा खींचा और फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, आए लोगो अपने रब से डरो। इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा सख्त है, क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा सख्त है। तुम उस ज़लज़ले से बचो। उस ज़लज़ले से कैसे बचोगे? उस दिन की हालत ये होगी, उस दिन का हाल ये होगा, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने से गाफिल हो जाएंगे, अपने बच्चों को दूध पीते बच्चों को छोड़ देंगे। तुम देखोगे, वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, तुम देखोगे जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जिस माँ के पेट में बच्चा हो, कब उसका हमल इसखात हो जाएगा, कब उसका हमल गिर जाएगा, उस औरत को एहसास नहीं होगा। एक माँ से पूछो, एक औरत से पूछो कि जब बच्चा जनती है, जब बच्चा जनता
جنتا ہے میرے بھائیوں، تو جب اولاد جنتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنا احساس ہوتا ہے، ایک ماں کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اس دن کی ہولناکی دیکھیے، ماں اپنے بچوں کو گرا دیں گے، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، اور آگے بڑھیے اس زلزلے کی طرف، اس زلزلے کی ہولناکی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے، یوں کفرتم فکیف تتقون یوں کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا۔ اے لوگو، اس دن کی ہولناکی سے کیسے بچو گے جس دن بھی بچے بھی مارے خوف کے، مارے دہشت کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، 40 سال کی عمر میں بال پکتا ہے تو ہم اور آپ احساس کرتے ہیں کہ ہماری جوانی چلی گئی، لیکن اس دن کی ہولناکی اور اس دن کا خوف دیکھی کہ مارے خوف کے بچے بھی بوڑھے بنا دیے جائیں گے، مارے خوف کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ زلزلے کا خوف ہے میرے بھائیوں، اس ہولناکی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہم اور آپ اس ہولناکی سے کیسے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، لوگ میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، بھاگیں گے، پھر لوگوں کے سامنے جہنم لائی جائے گی۔ یؤتی بجہنم یومئذ، میدان محشر میں جہنم کو لائی جائیں گی، لوگوں کو دکھا دی جائیں گے جہنم کیسی جگہ ہے، لوگوں کو دکھا دیے جائیں گے۔ یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو لائی جائیں گے، اس کے 70,000 لگام ہوں گے۔ لگام اس لیے لگایا جاتا ہے، نکیل اس لیے کسی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ جہنم کتنا پاورفل ہے، جہنم کتنا طاقتور ہے، جہنم کتنا طاقت رکھتی ہے میرے بھائیوں۔ 70,000 لگام ہوں گے، مع کل زمام، اور ہر لگام کے ساتھ لہا 70,000 ملک، 1000 فرشتے ہوں گے، ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، 70,000 لگام، ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، ٹوٹل اگر کیلکولیٹر کیا جائے تو 4 ارب 90 کروڑ بنتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جہنم کو اس طرح لائے جائیں گے کہ تقریباً 5 کروڑ 5 ارب فرشتہ ہوں گے، تقریباً 5 ارب فرشتہ ہوں گے، اور جہنم کو لائیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ جہنم کے پاس اتنا طاقت ہے کہ اتنے فرشتے اس جہنم کو لائیں گے، اور فرشتے کے پاس اتنی طاقت ہے، زمین میں ایک مرتبہ پر مار دے تو زمین تہس نہس ہو جائیں گے۔ اس جیسے فرشتے ایک ایک نہیں بلکہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ اس جہنم کو لائیں گے۔ جہنم کتنا پاورفل۔ مہیلا کی طرف چادر بھیجنے کو اعلان کر دیجیے گا۔ ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کی طرف چادر بھیجی جا رہی ہے، آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ یہ مسجد کے سلسلے میں پروگرام رکھا گیا ہے، جہاں تک ہو سکے آپ اس میں تعاون کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم سے ہماری ایک مسجد چھین لی گئی، پھر ابھی حال ہی میں گیان واپی مسجد کا مدعا چل رہا ہے۔ اللہ سے دعائے خیر کہ اللہ رب العالمین اس کو بچائے رکھے۔ تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میدان محشر کی طرف لوگ جائیں گے اور انہیں جہنم دکھا دیے جائیں گے، اور پھر لوگوں سے کہا جائے گا، اے لوگوں تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا، تم جنت نہیں جا سکتے ہو اور نہ ہی جہنم، تم ایک جگہ پہ جمع رہو۔ ایک لائن کھینچ دیے جائیں گے، سب لوگ ایک لائن پہ ہوں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 وفی روایت عن 4۔ لوگوں کو جمع کر دیے جائیں گے، کوئی انسان اپنا قدم ہلا نہیں پائے گا جب تک 5 سوال ان سے کر نہ لیا جائے۔ 5 سوال جب تک ان سے پوچھ نہ لیا جائے، کوئی انسان اپنا قدم ہلا نہیں پائے گا۔ 5 سوال میں ایک سوال یہ ہے، ان عمرہ فیما فنا، بتاؤ ہم نے تمہیں دنیا میں عمر دی، بتاؤ تم نے اس عمر کو کہاں لگایا۔ وان شبابی فیما ابلا، ہم نے تمہیں دنیا میں جوانی دی، بتاؤ تم نے اس جوانی کو کہاں لگایا، بتاؤ تم نے اس جوانی کو کہاں لگایا۔ نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے، اور مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ آپ ہی کے دباؤ پہ، آپ ہی کے پریشر میں آپ کے بیچ آیا ہوں، کیونکہ آپ سے ہماری محبت ہے، اور آپ ہی کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آپ کے بیچ آئے ہیں۔ آپ نوجوانوں سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں سوال کرے گا ہی کرے گا، لیکن جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے اس جوانی کو غنیمت سمجھیں، جوانی کو برباد نہ کیجیے۔
बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। नौजवानों, अल्लाह का दरवाजा भी खुला है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। आप अल्लाह से तौबा कीजिए कि हम अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करेंगे। दुनिया में भी दुनिया का मामला है, अगर दुनिया में भी अपनी जवानी को सही रास्ते पे लगाया तो आपने माल जमा किया, आप बुढ़ापे की आलम में पहुंच गए, आप कमाने के लायक नहीं रह गए, आपसे आपका ओहदा छीन लिया गया, आपसे आपकी पोस्ट छीन लिए गए, आपके पास ताकत नहीं है कि आप मजदूरी कर सके, और आपके पास कोई ताकत भी नहीं है कि आप कोई पोस्ट बना के पैसा हासिल करें। लेकिन अगर जवानी में मेहनत करके आपने पैसा जमाया है तो बुढ़ापे में आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। लेकिन अगर जवानी में आपने कमाया नहीं, आपने बर्बाद कर दिया, न रुपया कमाया न दौलत कमाए, आपने पैसा जमा नहीं किया, तो यकीन जानिए बुढ़ापे की आलम में आपकी औलाद आपकी कदर नहीं करेगी। ये तो दुनिया का हाल है, ये तो दुनिया का मामला है। लेकिन उस दुनिया की भी, अगर उस दुनिया के लिए भी अपना कोई ऐसा अमाल दुनिया में कर जाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के लोगों को, जवान लोगों को जो मस्जिदों में रहकर अपनी जवानी को गवाए, अपनी जवानी को खत्म किए, दुनियावी कामों में नहीं दीनी कामों में अपनी जवानी को लगाए, तो उस जवान को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के नीचे जगह देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये दो सवाल हो जाएंगे। फिर माल के बारे में पूछा जाएगा कि माल तुमने कहां से कमाया। फिर मालदारों से पूछा जाएगा कि हाँ, मान गए कि तुम रिक्शा चलाकर पैसा कमाए, मेहनत और मजदूरी किए, लेकिन बताओ तुमने उस माल को कहां खर्च किया? क्या मस्जिद के लिए जलसा हो रहा था, आपने कुछ दिया? क्या कहीं पर सदका जारिया के तौर पर आपने मस्जिद बनवाई, मस्जिद के ताउन में हिस्सा लिया, शामिल हुए, कहीं पर टेबल गाड़ दिए, किसी यतीम की मदद कर दिए, कहीं पर किसी की शादी नहीं हो रही है, आपने वहां कुछ हाथ बटा दिया? अगर आप इन चीजों में माल को लुटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीवी पे मत खर्च कीजिए, बीवी पर भी अगर नेक और सही इरादे से खर्च कर रहे हैं तो मेरे भाइयों इसमें भी सवाब है। बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। औलाद को कत्ल करना सिर्फ ये नहीं कि आप उसके गुनहगार हो गए, अपनी औलाद को तालीम से महरूम रखना, इसके भी आप गुनहगार। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी को गनीमत समझिए और जो माल आपने कमाया है उसको भी सही रास्ते पर लगाइए। कुछ लोग बखील इतना बन जाते, इतना कंजूस बन जाते हैं। एक आदमी जंगल में अपने चप्पल को हाथ में लेके चल रहा है, अपनी जूती को हाथ में लेके चल रहा है, पैर में कांटा चुभ गया, अब खून निकल रहा है। लोगों ने पूछा कैसा पागल है, जंगल झाड़ी में चल रहा है, हाथ में चप्पल है, जंगल में कांटा उठा है, पैर में चुभ गया ना, खून निकलने लगा। बोला अच्छा हुआ पैर में ना कांटा चुभा, हमारी जूती तो बच गई। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा मत कीजिए। बखील की एक अलामत है कयामत की निशानियों में। एक बादशाह बड़ा उटपटांग सवाल कर रहा था, कह रहा कि कोई अगर मेरे सवाल का जवाब दे दे उसको एक बंगला फ्री में दे दिया जाएगा। उन्होंने सवाल ये किया, अच्छा ये बताओ मेरे हाथ पे हथेली में बाल क्यों नहीं? वो नौजवान बड़ा चालाक था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप जो है ना बहुत सखी आदमी है, फयाज आदमी है, दान देने में बहुत आगे, आप दान देते रहे, इतना दे दिए कि हाथ हथेली से बाल ही उखड़ गया, बाल ही खिसक गया। बस हाँ, बहुत अच्छा जवाब है, चलो इसको इनाम दे दिया जाए। फिर अचानक सवाल आया, अच्छा मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, तुम्हारे हाथ में फिर क्यों नहीं है? वो नौजवान भी बड़ा चालाक था, वो कहने लगा बादशाह सलामत, आपका देते देते बाल घिसक गया और मेरा लेते लेते बाल घिसक गया। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब है, चलो और इनाम दे दिया जाए। फिर सवाल कर रहा है, अचानक दिमाग में ख्याल है, इतने लोग बैठे हैं, किसी के हथेली पे बाल नहीं है, फिर इन लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं हथेली पे? तो नौजवान जवाब दिया, बादशाह बात यह है कि आपका देते देते घिसक गया, मेरा लेते लेते घिसक गया, और जितने लोग बैठे हुए थे सब हसद और जलनखोर है, मेरा और आपका देखते देखते इन लोगों का जलन पैदा हुआ, हाथ मलते मलते घिसक गया। तो मेरे प्यारे साथियों, बखीली की अलामत भी है, इसलिए आप अल्लाह के राह में लुटाइए, बीबू में खर्च कीजिए। कितने औरतों से भी शिकायत आई है कि हमारे शौहर हमारे ऊपर खर्च नहीं करता,
माल कमाता है, अच्छी खासी दौलत है, बच्चों पर सर्फ नहीं करता है। बीवी अगर कुछ खर्च कर दे अपनी मर्जी से, शौहर उसको डांटता है। ऐसा नहीं कि उसके पास माल नहीं है, बावजूद ये वो समझते हैं कि हम अपनी औलाद को सुख से नहीं रखेंगे, ज्यादा नहीं खर्च करेंगे, अपनी औलाद पर जमा करने की फिक्र में। तो मेरे प्यारे साथियों, माल कमाना गलत नहीं है, माल को कमाना सही है, लेकिन उसको उस रास्ते पे लगाया जाए जो अच्छा रास्ता है। मेरे प्यारे साथियों, और पांचवा सवाल किया जाएगा, इल्म वालों से सवाल किया जाएगा, क्या है बताओ, आए आलिमो, आए इल्म सीखने वालों, तुमने उस पर इल्म सीखा और कितना अमल किया और लोगों को कितना अमल करवाया? ये 5 सवाल कर लिया जाएगा। फिर मेरे प्यारे साथियों, जन्नतियों को जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम के सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे, जहन्नम के गिरोह अलग अलग गिरोह में बढ़ जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, अलग अलग गिरोह, अलग अलग दरवाजे से अलग अलग गिरोह दाखिल होंगे। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम, हर दरवाजे से अलग अलग लोग दाखिल होंगे। किसी दरवाजे से मुनाफिक लोग दाखिल होंगे, किसी दरवाजे से बेनमाजी दाखिल होंगे, किसी दरवाजे से मुशरिकीन दाखिल होंगे, किसी दरवाजे से कोई और दाखिल होंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक आवाज आएगी, ऐ जन्नतियों रुक जाओ, ऐ जहन्नमियों रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। एक फरिश्ता आएगा, अपने हाथ में दुम्बा लेकर आएंगे, मौत को लाएंगे, मरे हुई शक्ल में, दुम्बे की शक्ल में लाएंगे, मौत को लाएंगे और जन्नतियों से कहेगा, ऐ जन्नतियों, तुम्हारे सामने मौत को ज़िबा कर दिए जाएंगे, ऐ जहन्नमियों, तुम्हारे सामने मौत को ज़िबा कर दिए जाएंगे। इसलिए ऐसा किया जाएगा क्योंकि मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह मौत को पैदा किया, अल्लाह जिंदगी को पैदा किया, तो मौत को भी एक दिन फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मौत को भी फना होना है। ऐ जन्नतियों, तुम्हारे सामने मौत को भी मौत आ जाएगी, उनकी गर्दन पर छुरी चला दिए जाएंगे। ऐ जहन्नमियों, तुम्हारे सामने भी मौत की गर्दन पर छुरी चला दिए जाएंगे। ऐ जन्नतियों, जन्नत में तुम जाओ, तुम्हारे दिल में ये, जहन में ये शक ना आए, ये ख्याल पैदा ना हो कि हमें जन्नत में मौत आएगी। नहीं नहीं, जन्नत में तुम्हें अब मौत नहीं आएगी, जाओ हमेशा के लिए जन्नत में जाओ। ऐ जहन्नमियों, तुम भी हमेशा के लिए जहन्नम में जाओ। कोई अगर नेक अमल किया है, राई के दाने के बराबर उसके अंदर ईमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा भुगतने के बाद, उनकी जब सजा पूरी हो जाएंगे, एक दिन उसे जहन्नम से निकालेगा, लेकिन मौत उसको जहन्नम में भी नहीं आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, जन्नत का बाला खाना में दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मुसलमानों, जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। जन्नत का ये आला किस्म है, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, मेवे झुके हुए होंगे, फल झुके हुए होंगे, उनके मुंह को उनको बढ़ाना ज्यादा नहीं होगा, फल उनके मुंह तक आ जाया करेंगे। जन्नत में दाखिल होंगे, दूध की नहरें देखेंगे, शहद की नहरें देखेंगे, जन्नत की नियामतों को देखेंगे और कहेंगे, अल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि दुनिया में हमने ऐश नहीं किया, बहुत अच्छा हुआ कि दुनिया में हमने हराम नहीं खाया, बहुत अच्छा हुआ कि दुनिया में हमने गलत काम नहीं किया। जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, वह हूरुन ईन, बड़ी बड़ी आंखों वाले हूर हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह हमारे यहाँ अगर कोई एमपी आ जाए, कोई अगर यहाँ चीफ मिनिस्टर आ जाए, उनके लिए दरवाजा बनता है, उनके लिए गेट सजता है और उनके लिए वेलकम कहा जाता है, खुश आमदीद कहा जाता है। जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, उनका इस्तकबाल हूरें करेंगे, जिनकी सिफत ये होगी, बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी, खूबसूरत खूबसूरत हूरें होंगी। मेरे प्यारे साथियों, और एक बड़ी खुसूसियत ये होगी, जन्नतियों की वो पहली बीवी होगी, ना उसको किसी मर्द ने उससे पहले छोया है, न किसी जिन ने छोया, न किसी इंसान ने छोया है। गोया कि वो जन्नतियों की पहली ही बीवी होगी, जो हूरें होंगी वहां, वो जन्नत में जन्नतियों की पहली बीवी होगी। जन्नती जन्नत के अंदर चली जाएंगे, जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर जाएंगे, जहन्नम के अंदर जाते देखेंगे
किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी का सर पे पत्थर मारा जा रहा है, कोई खून के दरिया में गोता लगा रहा है, किसी का पैर कटा पड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नमी ये मंजर देखेंगे तो रोने लगेंगे। जन्नती मेरे भाइयों, जन्नती अपना दरवाजा खोलेगा, खिड़की खोलेंगे और जहन्नमियों को देखेंगे कि जहन्नमियों का ये हाल है, जहन्नमियों को ये सजा दी जा रही है। जन्नती जहन्नम से सवाल करेंगे, ऐ जहन्नमियों फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, ऐ जहन्नमियों बताओ तुम्हें आज जहन्नम में क्यों जलना पड़ रहा है। मा सलककुम फी सकर, आज तुम्हें जहन्नम में क्यों जलना पड़ रहा है। जहन्नमी जवाब देगा, ऐ जन्नतियों वलम नकु मिनल मुसल्लीन, दुनिया में हम नमाज़ें नहीं पढ़ा करते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, दुनिया में हम यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे, मिस्किनों को खाना खिलाया नहीं करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, लोग क़यामतों पर यकीन रखते हुए नमाज पढ़ रहे थे, क़यामत पर यकीन करते हुए लोग सही रास्ते पे चल रहे थे। हमें तो क़यामत पर शक था, हमें तो क़यामत पर यकीन ही नहीं था। जहन्नमी ये जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, मिस्किन को खाना नहीं खिलाया करते थे, दुनिया में झूठी बातें कहा करते थे, और दुनिया में सबसे बड़ा हमारा कारण ये जहन्नम में आने का कि हमें क़यामत पर शक था, क़यामत के दिन पर हमारा यकीन नहीं था, क़यामत के दिन पर हमारा यकीन नहीं था। ये जहन्नमी जवाब देंगे। मेरे भाइयों, जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे, जहन्नम कितना पावरफुल होगा, कितना खतरनाक होगा। मेरे भाइयों, जहन्नमियों को दूर से ही देखेंगे तो जहन्नम का गुस्सा भड़क जाएगा। जहन्नम गुस्से से आग जिस तरह भड़क रही है मेरे भाइयों, जहन्नम गुस्से से भड़क उठेंगे। जहन्नमियों को दूर से देखेंगे, रातहुम मिन मकानिम बईद, दूर से देखेंगे कि जहन्नमी आ रही है, काफिर आ रहे हैं, मुशरिक आ रहे हैं, जहन्नमी आ रहे हैं, बेनमाजी आ रहे हैं। जहन्नम देखेंगे कि जहन्नमी दूर से आ रहे हैं, जहन्नम का गुस्सा भड़क जाएगा। मिन मकानिम बईद, दूर से देखते ही उनका गुस्सा भड़क जाएगा। जहन्नमी उनके गुस्से को सुन लेंगे, समिओ, उनके गुस्से को सुन लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम दूर से जहन्नमियों को देखेंगे, उनका गुस्सा भड़क जाएगा। जहन्नम में जहन्नमियों को डाला जाएगा, कुछ लोगों को डाला जाएगा। फिर और आवाज आएगी कि आपका पेट भर गया। जहन्नम कहेगी नहीं नहीं, और डाला जाएगा। 100 में अगर 99 को भी डाल दिया जाए फिर भी जहन्नम कहेंगे और डालिए, और डालिए, हल मिन मजीद, और डालिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ालु जहन्नम व तक़ूलु हल मिन मजीद, जहन्नम कहेंगे और डालिए, और डालिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर कर अपने पैर को जहन्नम में डाल देंगे। तब जहन्नम कहेगी बस बस हो गया, बस करो, अब नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का पेट कितना खतरनाक है। जहन्नम दूर से जहन्नमियों को देखेंगे, उनका गुस्सा भड़क जाएगा। जहन्नम की गहराई देखिए, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, हजरत अबू हुरैरा बयान करते इस हदीस को। अबू हुरैरा मौजूद है। अचानक एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आए, बहुत बड़ा धमाका हुआ, अचानक आवाज आए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे साहबा, क्या तुम जानते हो ये आवाज कैसी है? साहबा कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ये ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, हादा हजरुन रुमिया, आए मेरे साहबा, ये एक पत्थर की गिरने की आवाज है जो आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और आज वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, जहन्नम की गहराई देखिए, 70 साल तक एक पत्थर को उसकी तह तक पहुंचने में लगता है। आप गौर कीजिए, जहन्नम की गहराई देखिए। पता चला जहन्नम के कुछ कैटेगरी है, जहन्नम के कुछ हिस्से हैं, कुछ जहन्नम के मेरे भाइयों कैटेगरी है, कुछ किस्में है। कोई कम गुनाह किया ऊपर में, ज्यादा गुनाह किया नीचे में। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होगा। आप गौर कीजिए, मुनाफिक कहते किसे है? मुनाफिक उसे कहते जो ईमान का चोला पहनकर मुसलमानों को धोखा दे, जो ईमान का चोला पहनकर मुसलमानों को, मोमिनों को धोखा दे। अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, युखादिऊन अल्लाह, ये लोग अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन धोखा
اللہ کو نہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے بھائیوں جہنم کی گہرائی دیکھیے کہ 70 سال ایک پتھر کو گرنے میں اس کی تہ تک پہنچنے میں لگ گیا. یہ میرے جہنم کی گہرائی ہے. جہنم کی طاقت بھی آپ دیکھ لیے, جہنم کی گہرائی بھی دیکھ لیے, جہنم کا پیٹ کتنا خطرناک یہ بھی دیکھ لیے. میرے بھائیوں یقین جانیے یہاں سے اٹھ کر ہم اپنے آپ سے ارادہ کریں, اپنے آپ سے وعدہ کریں, اپنے دل سے ارادہ کریں کہ یہاں سے جانے کے بعد ضرور اپنے دل کا محاسبہ کریں گے, اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے اور سوچ کے دیکھیں گے. ہم دن بھر دکان چلاتے ہیں اس کا حساب کر لیتے ہیں, ہم کاروبار کرتے ہیں اس کا حساب کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا, ہم نے اپنے زندگی کا محاسبہ نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اے مومنو, تم کو چاہیے کہ تم آخرت کی تیاری کرو اور سوچو کہ آئندہ کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اگر ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا, ہم نے اپنے نفس کا جائزہ لے لیا, ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا, اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا, جنہوں نے اپنے خواہش کو قابو میں پا لیا, نفس کی غلامی سے آزاد ہو گئے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر نفس کے اطمینان والے بنا لیے, اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرے بھائیوں اللہ ایسے نفس سے آواز دے گا, اے اطمینان والے نفس, اے اطمینان والی روح, داخل ہو جا, وادخلی جنت فی عبادی وادخل فی عبادی, میرے بندوں میں بھی شامل ہو جا, وادخلی جنتی, اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا. اللہ ایسے نفس کو کہیں گے, لیکن نفس کا محاسبہ کرنا ہے. دکان کا حساب لگا لیتے ہیں, اپنے نفس کا بھی حساب کیا کریں. ہم نے صبح سے لے کے شام تک کیا کیا. اس لیے تو عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا امسیت واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر اور حنظلہ کی ملاقات آپس میں ہو جاتی ہے, مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے, دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنظلہ کیا حال ہے؟ حنظلہ جواب دیتا ہے اے ابو بکر, حنظلہ منافق ہو گیا ہے. ابو بکر کہتا ہے حنظلہ کیا بات کر رہے ہو, کیسی بات کر رہے ہو, کیوں منافق ہو گئے ہو؟ حنظلہ کا جواب یہ تھا کہ اے ابو بکر, ہم جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کچھ اور حالت ہوتی ہے, جب نبی کی مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں, جب بیوی میں چلے جاتے ہیں, بچوں میں چلے جاتے ہیں, اپنے کنبے میں چلے جاتے ہیں, وہاں کچھ حالت ہو جاتی ہے, ایمان رہتا ہے لیکن وہاں کچھ حالت, یہاں کچھ حالت. ابو بکر نظری آسمان پر اٹھایا اور کہتے ہیں حنظلہ میرا بھی حال یہی ہے. دونوں شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور مسئلہ پوچھنا چاہا. آپ نے فرمایا اے ابو بکر, اے حنظلہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے نبی کی مجلس میں رہو تو کچھ حالت ہوں گے اور عام مجلس میں تمہاری کچھ حالت. سپوز کیجئے آپ یہاں ہیں, آپ کے دل میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جنت ہی چاہیے, ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں, دین کے کام میں لگ جائیں گے, نماز پڑھنے لگ جائیں گے, آنے والے رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, لیکن جیسے یہاں سے اٹھیے گا آپ کے ایمان کی کچھ اور حالت ہو جائیں گے. ابو بکر کے دل سے ایمان نہیں ہٹا تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا ہے وہاں کچھ کیفیت, یہاں کچھ کیفیت. تو میرے بھائیوں نفس کا محاسبہ کرتے رہیے. 1 گھنٹہ کا ٹائم ہو گیا, میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, باری الہ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما, جنت کی تیاری کرائے, جہنم سے بچنے کی تیاری کرائے اور سب کو پکا سچا مومن بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.